रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है दीदी। स्क्रीन शेयर हुआ है दीदी। तो आज देखो हम लोग बायबैक तो खत्म हो गया है, उस पर थोड़ा सा कुछ थ्योरी है वो बता देंगे, आज क्लास के एंड में बता देंगे। ठीक है, कुछ थोड़ा पॉइंट है जो मतलब याद रखने से अच्छा होगा और इससे तुम लोग को लॉ में भी मिल जाएगा। तो देखो आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये है क्या, पहले लिख लेते हैं फिर बताएंगे क्या है। तो इसे हम शॉर्ट में ESOP बोल रहे हैं। ठीक है, ESOP मीन्स एग्रीमेंट between employee and employer wherein employees are to be given shares at concessional rate good evening Moshu. गुड इवनिंग मैम। कंसेशनल रेट या प्राइस लिख सकते, कंसेशनल रेट और प्राइस आफ्टर certain performance conditions are satisfied. ESOPs has advantage of reducing turnover of employees without payment of cash. Next लिखो, following are दीदी আগের পেজটা একটু দেখাও, লাস্টে একটু বাকি ছিল। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। following are important terms relating to ESOP. First, grant date. Date of agreement.
between employee and employer. Number of options. Number of shares to be allotted. Next, service, exercise price. Exercise price. Price employee is required to pay. Price employee is required to pay. Vesting condition. Performance condition means performance condition. Exercise period. Period during which employee is required to make payment. Required to make payment. Next, ये ड्रॉ कर दो. Vesting date. Exercise date. Point 3. Calculation of expense. ब्रैकेट में लिखो, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मीन्स वैल्यू जो आएगा एक्सपेंस का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब लिखेंगे एक फॉर्मूला जो कि थोड़ा लेंदी है, तो तुम लोग छोटा छोटा करके लिखो. नंबर ऑफ employees estimated to get option. Estimated
to get options. Number of employees estimated to get options into number of options per employee. Number of options per employee. ब्रैकेट के बाहर इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन. फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस. फिर ये पूरा थर्ड ब्रैकेट में देना है हम लोगों को, ये पूरा इनटू एक्सपायर्ड पीरियड. ये जो है यहाँ पर लिखना है एक्सपायर्ड पीरियड माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड. माइनस expense already recognized. होल डिवाइडेड बाय होगा, होल डिवाइडेड बाय होगा ये छोड़ के. ये माइनस जो है ये एक्चुअली यहाँ से लगा लो तो ठीक रहेगा. माइनस को यहाँ लगा देते हैं. माइनस जो है यहाँ पर होगा माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज डिवाइडेड बाय होगा वेस्टिंग पीरियड. मतलब ये पूरा जो है थर्ड ब्रैकेट अप टू एक्सपायर्ड पीरियड तक डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड. माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इस तरह से लिखना है. नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट 4 जर्नल एंट्रीज लिखेंगे. फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड. फॉलोइंग Point 1 on the date of contract no entry. On vesting date or year end एंट्री होगा एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू ESOP employee stock option being expense recorded. Being expense recorded. फिर ये पार्ट 1 और पार्ट बी इसका जो होगा ट्रांसफर करना है तो लिखेंगे एम्प्लॉय लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू employee compensation being transferred to PL. Being transferred to PL. Third entry on allotment of option
on allotment of option. First entry, bank account debit to issue, bank account debit to issue, being amount received, पॉइंट 2 है ईशॉप अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम being shares allotted. Fourth, options are not exercised. तो एंट्री होगा ईशॉप टू जनरल रिजर्व, ईशॉप अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, being amount transfer. अब एक पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस on grant date minus exercise price. Next point, number of employees estimated to get options will be total number of employees to whom options are granted less लिखेंगे estimated employees expected to leave Next audit note, ESOP is shown in balance sheet under the head shareholders fund with in subhead under subhead
under subhead reserve and surplus. Next, while calculating loss to company due to issue market price on date of announcing issue is compared with exercise price. Price of issue. Market price given in question on any other date is irrelevant. Irrelevant. ओके तो देखो हम लोग ये पहले जानते हैं कि ईशॉप क्या है, ठीक है। तो ईशॉप मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब ये स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब होता है शेयर, ठीक है। तो एम्प्लॉय को जो हम लोग शेयर का ऑप्शन दे रहे हैं उसे ही बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब क्यों दे रहे हैं? देखो क्या होता है कि जब भी किसी को मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक जन ने हाल ही में सपोज सीए या सीए में कुछ भी सीए में कंप्लीट किया या फिर सीएस कंप्लीट किया, उसे ए लिमिटेड से ऑफर आया, ठीक है। सर्विस के लिए उसे ए लिमिटेड से ऑफर आया। सपोज इसका नाम दे देते हैं मिस्टर पी, ठीक है। मिस्टर पी को ए लिमिटेड से ऑफर आया कि तुम मेरे कंपनी में काम करो, ठीक है। हम तुम्हें ईयरली कुछ भी एक पैकेज बताता है कि ईयरली तुम्हें इतना हम लोग सैलरी पे करेंगे। लेकिन तुम लोग को पता होगा कि किसी भी कंपनी में देखो इंटरव्यू से तो जॉब तो मिल जाता है, लेकिन कंपनी को ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। उसके न्यू कमर को ट्रेन करना पड़ता है कि किस तरह से ऑफिस में जाए, किस तरह से मीटिंग अटेंड करे, किस तरह से काम करना चाहिए, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी नॉलेज हो या फिर अगर ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाना हो तो कंपनी काफी खर्चा करती है अपने एम्प्लॉय के ऊपर, उसे कुछ सिखाने के लिए, उसे ट्रेन करने के लिए, या फिर उसे मतलब जॉब जो उसको प्रोवाइड किया गया है वो करने के लिए वो कितना मतलब केपेबल है, उसका केपेबिलिटी एनहेंस करने के लिए बहुत तरह का क्या करती है, उसे ट्रेनिंग वगैरह देती है। और ये ट्रेनिंग जो होता है ट्रेनिंग पीरियड में ना कंपनी इसके लिए कुछ भी उससे पैसा नहीं लेती है, ट्रेनिंग देती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ट्रेनिंग पीरियड में भी उसे क्या करती है, सैलरी देती है। सपोज मान लो मिस्टर पी को उस ट्रेनिंग पीरियड में भी सैलरी मिल रहा है, लेकिन मान लो जैसे ये यहाँ पर कुछ दिन काम किया, सपोज 3 मंथ्स काम किया और ये इतना अच्छा एम्प्लॉय बन चुका है, अब इसके पास और भी अलग अलग ऑफर आ रहे हैं। मान लो ए लिमिटेड से बड़ा कंपनी है बी लिमिटेड, और मिस्टर पी को बी लिमिटेड से ऑफर आ गया वो भी ज्यादा, ठीक है। मिस्टर
बी को बी लिमिटेड से ऑफर आ गया और वो भी ज्यादा अमाउंट का आ गया, ठीक है। मान लो इसका था सपोज 10 लाख का पैकेज और इसने बता दिया 12 लाख का पैकेज, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब बोलेगा कि ठीक है मुझे इतना कुछ आ गया है, हम 10 लाख वाले पैकेज में क्यों रहे, ऑब्वियसली ये 12 लाख वाले पैकेज में जाना चाहेगा। अब फिर से ये कंपनी इसे कुछ सिखाएगी, ठीक है, अपने हिसाब से, और अगर फिर से कुछ अलग जगह का ऑफर आ जाएगा तो फिर ये शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या है, इससे मिस्टर पी को कितना नुकसान है, इनको कुछ नुकसान हालांकि है नहीं, लेकिन ये जो कंपनी है, जो कंपनी ने इसके ऊपर खर्चा किया, ठीक है, और इसको बैठा के सैलरी दिया, ट्रेनिंग पीरियड में अपने काम के लायक बनाया, ठीक है, लेकिन ये तो चला जा रहा है बार बार छोड़ के। और इससे क्या हो रहा है, देखो पैसा खर्चा करना तो है ही, लेकिन अगर ये गुड एम्प्लॉय बन जाता है और फिर छोड़ के जाता है तो कंपनी को बहुत नुकसान है, क्योंकि कंपनी को हमेशा मतलब ऑनेस्ट ट्रस्ट वाला एम्प्लॉय चाहिए होता है, जो हार्ड वर्किंग हो, काम करे, ठीक है, जिसके पास नॉलेज हो, जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए हेल्प करे। अगर ऐसा एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो कंपनी को बहुत दिक्कत होता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एम्प्लॉय जो भी अच्छे एम्प्लॉय है उन्हें बांध के रखने के लिए कंपनी ऑफर देती है एम्प्लॉय को कि अगर तुम एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल करोगे, तो सर्टेन कंडीशन क्या है, मतलब तुम्हें मेरे कंपनी में सपोज 5 इयर्स काम करना पड़ेगा। ए लिमिटेड बोल रही है मिस्टर पी को कि तुम्हें मेरे कंपनी में 5 इयर्स काम करना पड़ेगा, 5 इयर्स काम करना पड़ेगा। अगर तुम 5 इयर्स काम करोगे और मेरे कंपनी को छोड़ के नहीं जाओगे तो हम तुम्हें मेरे कंपनी का जो भी शेयर है, ए लिमिटेड बोल रही है मेरे कंपनी का शेयर जो रेट पे चल रहा है, मतलब जिस दिन कंपनी बात कर रही है मिस्टर पी से, उस दिन जो मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है, उस प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज उस दिन मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का 160, ए लिमिटेड कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है 160। कंपनी बोल रही है कि ये शेयर जो है हम 5 साल बाद तुम्हें क्या करेंगे, कंसेशनल रेट, मतलब बहुत ही कम वैल्यू में, या फिर मतलब रेट बताना पड़ेगा कंपनी को ऑन दैट मोमेंट ही, या फिर हम फ्री में तुम्हें मेरे कंपनी का 10,000 शेयर दे देंगे, मेरे कंपनी का 10,000 शेयर दे देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन बस इतना है कि तुम्हें 5 साल टिक के मेरे कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। ऑन दैट पीरियड तुम किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे हम तुम्हें 10,000 शेयर दे देंगे, वो भी फ्री में या फिर कंसेशनल रेट में, जो भी कंडीशन होगा, दोनों ही हो सकता है, फ्री में भी दे सकते हैं या फिर कंसेशनल रेट में। इससे क्या होगा, इससे इसे एक लालच आया कि ठीक है अगर हम कंपनी में टिक के काम करते, मुझे कहीं ना कहीं तो काम करना ही है, अगर हम यहाँ पर काम करेंगे तो मुझे कुछ दिन बाद क्या होगा, हम कंपनी का 10,000 शेयर्स का शेयर होल्डर बन सकते हैं और इक्विटी शेयर मिलेगा। तो इक्विटी शेयर ही नॉर्मली होता है, तो और इक्विटी शेयर मिलेगा तो हम कंपनी के क्या हो सकते हैं, ट्रू ओनर भी हो सकते हैं। जैसा होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का बहुत सारा राइट्स रहता है, हम एम्प्लॉय के साथ साथ क्या बन जाएंगे, हम एम्प्लॉय के साथ साथ ओनर भी बन जाएंगे कंपनी का। तो इस तरह से कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी अपने जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उन्हें थोड़ा बहुत लालच देके, मतलब इसे लालच ही बोल सकते हैं क्योंकि इसे भी लालच है अपने सैलरी ज्यादा बढ़ने का, तो ये क्योंकि दूसरे जगह शिफ्ट ना हो जाए, बार बार अच्छे एम्प्लॉय का टर्नओवर मतलब यहाँ पर होता है कि चेंजेस, ठीक है, लेफ्ट कर जाना, कि बार बार अगर मतलब मूवमेंट, टर्नओवर मतलब मूवमेंट होता है, जो अच्छे एम्प्लॉय का मूवमेंट वो रोकने के लिए कंपनी इस तरह का ऑफर देती है। इसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये देखो मैंने वही लिखवा है, ESOP मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है wherein employees are to be given shares at concessional price after certain performance conditions are satisfied। मतलब परफॉर्मेंस कंडीशन वही है कि तुम मेरे यहाँ पर 3 साल या 4 साल इस तरह से काम करना पड़ेगा, जो भी हो, वो फॉर द एग्जाम्पल मैंने 5 इयर्स लिया है, वो कुछ भी हो सकता है। ESOPs हैज एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। ये ESOP ऑफर करने की वजह से क्या होता है, कंपनी का जो मतलब एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब यहाँ पर मूवमेंट, टर्नओवर या फिर मूवमेंट जो है चले जाने का, लेफ्ट करने का, वो कम हो जाता है विदाउट पेमेंट ऑफ कैश। कंपनी को कुछ कैश वगैरह खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ा। कंपनी 5 साल बाद या फिर जो भी होगा उसे जब शेयर ऑफर करेगी, वो कंसेशनल प्राइस हो सकता है एज वेल एज फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। तो इसे बोला जाता है ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स है। टर्म्स क्या है, जिस दिन एग्रीमेंट होता है, जिस डेट पे, जिस दिन ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट होता है उस डेट को बोला जाता है, ये देखो, ग्रांट डेट, डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। नंबर ऑफ ऑप्शंस मतलब कितने सारे शेयर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि
10,000 शेयर्स तुम्हें ऑफर किए जाएंगे। तो 10,000 शेयर्स क्या होता है? 10,000 शेयर्स जो है वो होता है नंबर ऑफ ऑप्शंस। जितने शेयर्स अलॉट किए जाएंगे सर्टेन कंडीशन परफॉर्म करने के लिए उसे बोला जाता है ऑप्शंस। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज मतलब अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं दे रहे, कुछ कंसेशनल रेट में दे रहे, मतलब बहुत ही कम से कम प्राइस में कंपनी क्या करेगी, 5 साल बाद उसे वो शेयर ऑफर करेगी। मतलब जो एम्प्लॉय है वो जब 5 साल वो कंडीशन फुलफिल कर लेगा और उसके बाद वो जब वो शेयर खरीदेगा, मतलब अगर देखो फ्री में दे रहा है तो खरीदने के लिए कुछ पैसा वगैरह देना नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेशनल रेट में अगर कंपनी ऑफर कर रही है तो सर्टेन टाइम के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो जिस प्राइस पे कंपनी से वो शेयर खरीदेगा उसे बोला जाता है एक्सरसाइज प्राइस। प्राइस एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू पे, मतलब जो कंसेशनल रेट है जो कंपनी को पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। वेस्टिंग कंडीशन, वेस्टिंग कंडीशन मतलब मेरे एग्जांपल में जैसे था 5 इयर्स, मैंने बोला कि कितने साल तुम्हें टिक के काम करना है, 5 साल। तो ये जो कंडीशन कंपनी दे देती है कि हाँ शेयर तो मिलेगा, ऑप्शंस तो मिलेगा, कम प्राइस में भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये कंडीशन फुलफिल करना है। कंडीशन क्या है, तुम्हें मेरे यहाँ पर एक टाइम पीरियड के लिए काम करना पड़ेगा। एक्सरसाइज पीरियड, पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट। देखो 5 साल काम करना है, उसके बाद तुम्हें शेयर खरीदना है। सपोज 5 साल काम करना है, उसके बाद तुम्हें शेयर खरीदना है, तो यहाँ पर आके तुम्हें शेयर, सपोज मिस्टर पी जो है वो मान गया और उसने 5 साल काम कर लिया ए लिमिटेड में, अब उसको शेयर खरीदना है। सपोज ये जो शेयर है ये कंपनी ने उसे ऑफर किया था 60 रुपीज में, 160 का जो प्राइस चल रहा था कंपनी ने उसे 60 रुपीज में ऑफर किया। अब कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर किया, अब ये 10,000 शेयर खरीदने वाला है 60 रुपीज कंपनी से, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आके इसके पास क्या है, इसके पास अभी पैसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या मिलता है, 3 डेज ग्रेस मिलता है ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसे बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट। मतलब कंपनी बोल देती ठीक है आफ्टर 1 मंथ तुम मुझे पे कर दो, तुम्हारा टाइम तो आ गया लेकिन हम तुम्हें 1 मंथ दे रहे, आफ्टर 1 मंथ सपोज तुम मुझे पे कर दो। तो ये जो 1 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड। जब मतलब वेस्टिंग पीरियड के बाद, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी अगर एम्प्लॉय कुछ टाइम मांग रहा है तो फिर उसे हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, जिस टाइम के अंदर उसे पेमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर वो नहीं कर पाता है तो वो ऑप्शन उसका लैप्स हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ग्रांड डेट मतलब जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है, अब उसे एक सर्टेन टाइम का मतलब परफॉर्मेंस जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है वेस्टिंग डेट, वेस्टिंग डेट मतलब जिस दिन उसका ये परफॉर्मेंस कंडीशन कंप्लीट होता है। अब उसके बाद उसे एक टाइम दिया जाएगा कि तुम इसके अंदर मुझे पेमेंट कर दो, इसे बोलते हैं पेमेंट पीरियड, और इसे बोला जाता है एक्सरसाइज डेट। मान लो 1 मंथ आफ्टर इसने क्या कर दिया, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट 1 मंथ के लिए टाइम दे दिया है कंपनी ने, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका था, फिर भी कंपनी ने उसे कुछ टाइम दे दिया है कि पेमेंट इतने दिन के अंदर कर दो। तो जितने दिन तक कंपनी रुकी हुई है उससे पेमेंट लेने के लिए उसे हम लोग बोलते हैं पेमेंट पीरियड, और ये हो जाता है लास्ट डेट जो दिया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज डेट। अब ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग क्वेश्चन के साथ समझेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला समझ जाओगे, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज भी हम लोग क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू ये सारा ही हम लोग को क्वेश्चन के साथ ही समझना है। अच्छा, ये भी हम क्वेश्चन में ही बताएंगे। ओके, तो चलो अब देखो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को करना क्या है, ईशॉप क्या है वो तो हम लोगों ने सीख लिया, मतलब समझ लिया कि ईशॉप क्या है, कि कंपनी अगर कंसेशनल रेट या फिर फ्री में शेयर ऑफर करेगी अपने एम्प्लॉय को मतलब बांध के रखने के लिए, तो इसे बोला जाता है ईशॉप। लेकिन ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जर्नल एंट्रीज का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक कंपनी जो है उसने ऑफर किया है, एक एग्जांपल लेते हैं 20,000 शेयर्स एज ईशॉप एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर किया है। वेस्टिंग पीरियड
सपोज है 3 ईयर, और मार्केट प्राइस है, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था मार्केट प्राइस है 60 रुपीज, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया है, कंडीशन देखो, एक कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉय को ऑफर किया है कि 20,000 नंबर ऑफ ऑप्शन है, ठीक है। 20,000 शेयर्स जो है एज इशॉप एट फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी क्या करेगी, अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर रही है, और कंडीशन क्या है, 3 इयर्स काम करना पड़ेगा। तो बताओ कंपनी का इसमें लॉस क्या है। कंपनी का इसमें लॉस ये है कि कंपनी ये 20,000 शेयर्स अगर पब्लिक को ऑफर करती तो कंपनी को कितना मिल जाता है, 20,000 इंटू कितना मिल जाता है, 20,000 इंटू इसका मान लो फेस वैल्यू है 10, ठीक है। तो कंपनी को जो कंपनी का शेयर का प्राइस कितना चलता है, 1,20,000। तो बताओ कंपनी का लॉस कितना हो रहा है, 1,20,000 सॉरी 12 लाख हो रहा है, 20,000 12 लाख हो रहा है। तो कंपनी को ये 12 लाख रुपीस का लॉस है। क्यों? क्योंकि कंपनी इसे एम्प्लॉय को बोल चुकी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देगी। तो कंपनी जैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी, ये प्रॉमिस कर रही है, जिस डेट पे उस डेट पे अगर शेयर का वैल्यू 60 रुपीज चल रहा है तो ऑन दैट मोमेंट ही कंपनी का जो लॉस है वो कंपनी को पता चल गया कि अगर ये 3 इयर्स तक काम कर लेता है और मुझे इसे, जैसे मैंने बोला है उस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर मुझे उसे शेयर ऑफर करने पड़ेंगे 20,000, तो मेरा लॉस कितना है अभी कंपनी को पता चल जाएगा ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कि लॉस है 12 लाख का, ठीक है। अब ये जो लॉस है 12 लाख का, ये क्या कंपनी फर्स्ट ईयर ही पूरा चार्ज कर देगी, क्योंकि देखो लॉस को तो मुझे पीएल में दिखाना ही पड़ेगा। कंपनी अपना जो एक्सपेंस या लॉसेस है वो तो पीएल में दिखाएगी, अदरवाइज क्या होगा, टैक्स ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो टैक्स शीट जनरेट करने के काम आएगी ना। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लॉस जो होने वाला है आफ्टर 3 इयर्स होने वाला है, क्योंकि ऑफर तो 3 इयर्स बाद करेंगे ना, ऑफर 3 इयर्स बाद करेंगे। लेकिन मुझे पता अभी चल जा रहा है, कंपनी को अभी पता चल जा रहा है, जब एग्रीमेंट हो रहा है तभी कंपनी को पता चल गया कि लॉस कितने का है, 12 लाख का है, लेकिन लॉस होने वाला है आफ्टर 5 ईयर। तो बताओ कि कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, वही हम लोग को सीखना है। इसमें अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट ये हो रहा है कि मुझे अभी पता चल गया 12 लाख का लॉस है, लेकिन ये तो पूरे 3 इयर्स बाद है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग को करना क्या है, पर ईयर का लॉस कैलकुलेट करना है। अगर 3 इयर्स का लॉस जो है 12 लाख है तो पर ईयर का लॉस कितना होगा बताओ। हेलो, 4 लाख। 4 लाख पर ईयर का लॉस हो जाता है 4 लाख। तो 4 लाख हर ईयर मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। कंपनी को 4 लाख का लॉस हर ईयर रिकॉर्ड करना है कि 4 लाख का लॉस हो रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, कंपनी अपना जो है पीएल में वो अपना एक्सपेंस मतलब लॉस को दिखा सकती है। इससे क्या हो जाएगा, कंपनी का जो टैक्स पेमेंट का मेथड है वो भी सही रहेगा। तो इसीलिए ये रूल्स है कि हम लोग 12 लाख एक ही बार में चार्ज नहीं कर सकते, या फिर 3 इयर्स बाद नहीं। मुझे अभी पता चल जा रहा है तो मुझे क्या करना है, हर साल राइट ऑफ करते जाना है। तो वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग को राइट ऑफ करना है, और उसी राइट ऑफ के बेसिस में ही हम लोग का क्या किया हुआ है, वो जर्नल जो भी है वो हम लोगों ने क्रिएट किया वहां पर। तो जर्नल उसी तरह से हम लोग यूज करेंगे। एग्जाम्पल एक लिखो, ए लिमिटेड गिव, ये क्वेश्चन है, इट्स एम्प्लॉय shops 500 options per employee for 20 employees. At the rate of 30 each when market price of share was rupees 75. Vesting period
is 3 years. Date of grant 1/4/11. Exercise period is 1 year. During 2011-12, one employee left. 2012-13, 3 employee left. 2013-14, 2 employee left. Options are exercised by 12 employees only. दीदी टारगेट पेजটা দেখো। Journalize. হ্যাঁ হয়ে গেছে। अच्छा देखो, अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ए लिमिटेड गेव इट्स एम्प्लॉय ईशॉप्स 500 ऑप्शन पर एम्प्लॉय। मतलब 500 ऑप्शन मतलब 500 शेयर्स ऑफर कर रहा है ए लिमिटेड, किसे? अपने एम्प्लॉयज को एज ए ईशॉप। शेयर को किस तरह से दिया जा रहा है? एज ए ईशॉप दिया जा रहा है पर एम्प्लॉय फॉर 20 एम्प्लॉयज। 20 एम्प्लॉय को ऑफर किया गया है, एक एक जन को 500 शेयर्स दिया जाएगा, एक एक जन को 500 शेयर्स दिया जाएगा at the rate of 30 each when market price of the share was 75। मतलब जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है उस दिन मार्केट प्राइस क्या है शेयर का? 75। लेकिन ऑफर दिया गया है कि आज मार्केट प्राइस 75 है, लेकिन अच्छा वेस्टिंग पीरियड भी पढ़ लेते हैं। वेस्टिंग पीरियड है 3 इयर्स। अगर ये 20 एम्प्लॉय 3 साल तक काम कर लेता है, कहीं और नहीं जा रहा है, तो एक एक जन को 500 करके शेयर दिए जाएंगे और वो भी 30 रुपीज में। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये कंसेशनल रेट है 30 रुपीज। अभी 75 है, हो सकता है आगे जाके मार्केट प्राइस और भी बढ़ जाए तो इन लोगों के लिए बेनिफिट है। और हाँ, और एक चीज भी हो सकता है मार्केट प्राइस बहुत खराब भी हो जाए। तो ये तो देखो फ्यूचर तो कोई उस तरह से देख नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर अच्छा कंपनी है तो यही सोचा जाएगा कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो देखो इन लोगों को 30 ही पे करना है उस शेयर के लिए जिसका अभी प्राइस कितना है? 75। अब वेस्टिंग पीरियड है 3 ईयर। डेट ऑफ ग्रांट, ठीक है, डेट ऑफ ग्रांट मींस जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है वो डेट है 1/4/11 और एक्सरसाइज पीरियड है 1 ईयर। मतलब 3 इयर्स के बाद 1 ईयर टाइम दिया जाएगा शेयर को 30 रुपीज में खरीदने के लिए। 1 ईयर टाइम दिया जाएगा शेयर को 30 रुपीज में खरीदने के लिए। तो देखो एक बार हम लोग इससे थोड़ा लिख लेते हैं तब तक। 1/4/11 ये हम लोगों का ग्रांट डेट, मतलब ये एग्रीमेंट है, इस दिन एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। एग्रीमेंट ये हुआ है कि शेयर दिए जाएंगे 20 एम्प्लॉय को, एक एक जन को 500 करके, यानी कंपनी टोटल अपना कैलकुलेशन लगा लेगी कि उसे कितना शेयर देना है। कंपनी का टोटल हो जाएगा 10,000 शेयर्स देना है। और जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है मार्केट प्राइस देखो क्या है, मार्केट प्राइस है 75, मार्केट प्राइस है 75। लेकिन
जिन लोगों को ऑफर किया जा रहा है, जो एम्प्लॉय को ऑफर किया जा रहा है, उनको कितना पेमेंट करना है, तो उनका पेमेंट करने का जो प्राइस होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, जो कि है 30 रुपीज। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा था, इसीलिए टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखा है। ये देखो, प्राइस एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू पे, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस आ गया 30 रुपीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितने दिन काम करना है, 3 इयर्स तक काम करना है, तभी ये शेयर्स मिलेंगे। तो 3 इयर्स के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो रहा है 1411 से लेके यहाँ पर लिखते हैं 12 तक, फिर 12 to 13 मतलब 1 साल 2 साल, एंड 13 to 14 ये हो गया 3 इयर्स का। देखो मैंने यहाँ पर जगह बना लिया, ये हो गया 3 इयर्स। और ये जो 3 इयर्स है इसे हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड, इसे हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड, या फिर परफॉर्मेंस पीरियड, या फिर वेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। ये वेस्टिंग पीरियड है, इतने दिन इन लोगों को क्या करना है, काम करना पड़ेगा। उसके बाद पे करना है 1 साल बाद, तो पे करना है 1 साल बाद यानी 15 में जाके पे करना है। और ये जो टाइम पीरियड है इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो टाइम पीरियड है इसे हम लोग बोलेंगे, ये पेमेंट करने का, इसे हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज। यहाँ पर लिख देते हैं टू पे टू कंपनी, इसके अंदर पे करना है, इसे हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड, या फिर पेमेंट पीरियड बोल सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग 2011-12 जब हुआ, 1 एम्प्लॉय लेफ्ट, तो 2011-12 देखते हैं यहाँ पर, 2011-12 मतलब ये वाला, तो 1 एम्प्लॉय लेफ्ट, तो एक एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चला गया, तो -1 एम्प्लॉय लेफ्ट, ठीक है। तो 500 सॉरी एम्प्लॉय कितने जन थे, 20 में से 1 चला गया। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं 2012-13 3 एम्प्लॉय लेफ्ट, 12-13 में 3 एम्प्लॉय चला गया, तो 12-13 में 3 एम्प्लॉय चला गया। और 13-14 में 2 एम्प्लॉय लेफ्ट, 13-14 में 2 एम्प्लॉय लेफ्ट, 13-14 में 2 एम्प्लॉय लेफ्ट। ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड बाय 12 एम्प्लॉयज ओनली, तो ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किया है, 12 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया है। तो पेमेंट इस दिन करना था, तो ऑप्शंस एक्सरसाइज बाय 12 एम्प्लॉय। तो देखो क्या 12 एम्प्लॉय बच रहे थे, 20 में से फर्स्ट ईयर में एक एम्प्लॉय चला गया, बचा 19, फिर 19 में से 3 एम्प्लॉय चला गया, बचा 16, 16 में से 2 एम्प्लॉय चला गया, बचा कितना। जब ईयर एंड हुआ तो ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस वेस्ट करने के लिए मतलब लेने के लिए बचे थे कितने, 14। ऑप्शंस वेस्ट करने के लिए 14 एम्प्लॉय बचे थे, लेकिन एक्सरसाइज किया है 12 लोगों ने, यानी लैप्स हो गया है। लैप्स मतलब एक एम्प्लॉय टिका हुआ था, उसने 3 इयर्स काम किया और उसने पेमेंट नहीं कर पाया, वो जो है पेमेंट नहीं कर पाया, इसीलिए लैप्स हो गया, लैप्स, ठीक है। 2 एम्प्लॉय लैप्स है, क्योंकि तुम लोग चेक करके देख लो, 20 जन को ऑफर दिया गया था, एक जन चला गया पहले साल ही, तो 19 में से 3 चला गया, 16 में से 2 चला गया, 14 लोगों के पास ऑफर अवेलेबल था, लेकिन जब पेमेंट करने का टाइम आया तो सिर्फ 12 लोगों ने पेमेंट किया है, ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। क्योंकि 14 था, 12 ने किया है, तो 2 जन हो गया है लैप्स, यानी 2 लोगों ने ऑफर जो है वो लैप्स कर दिया। अब देखो अब हम लोगों को देखना है कि कंपनी का नोट कहाँ है। ये देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑन ग्रांटेड माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है 30, कंपनी ने ऑफर कर दिया, सॉरी 75, और कंपनी ने ऑफर किया है 30 पे, तो बताओ कंपनी का कितना लॉस है।
कंपनी का लॉस कितना रुपीस है, कंपनी अपने 75 जो शेयर आज मार्केट प्राइस चल रहा है वो कंपनी ने क्या किया है, ऑफर कर दिया 20 एम्प्लॉय को और हर एक जन को बोला एक एक शेयर 30 रुपीज में दे देगी आफ्टर 3 इयर्स। तो बताओ लॉस कितने का है? 45। ये है लॉस फॉर कंपनी। कंपनी के लिए बोलोगे तो लॉस फॉर कंपनी, और हम लोग कंपनी का ही अकाउंट्स बना रहे तो उसी हिसाब से सोचेंगे, लेकिन एम्प्लॉय के लिए इतना फायदा है जो भी हो। तो लॉस फॉर कंपनी, क्योंकि हम लोग कंपनी के हिसाब से करेंगे तो ये कंपनी के लिए लॉस है, और इसे ही बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसे ही बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये देखो इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने लिखवाया था नोट्स में, अभी दिखाया मैंने। इंट्रिंसिक वैल्यू मींस मार्केट प्राइस ऑन ग्रांटेड माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अब ये कहाँ पर काम आएगा, देखो ये काम आएगा, ये जो फॉर्मूला है दिख रहा है यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ये फॉर्मूला भी अब समझना है। अब हम लोग ये फॉर्मूला ही समझेंगे। तो क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग को करना है जर्नल एंट्री, ये तो है जर्नल वाला ही चैप्टर। तो सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन तो ये है 1/4/11 का सबसे पहला जो है 1/4/11 में एग्रीमेंट हुआ है। तो तुम लोग को तो पता होगा कि एंट्री तभी होता है जब ट्रांजैक्शन होता है, मनीटरी ट्रांजैक्शन के बिना कभी भी एंट्री नहीं होता है। तो जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है मनीटरी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ पेन पेपर में जो हो रहा है एग्रीमेंट हो रहा है। इसीलिए जिस दिन एग्रीमेंट होता है उस दिन नो एंट्री, जिस दिन एग्रीमेंट होता है उस दिन नो एंट्री। ये देखो ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो एंट्री, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एंट्री करना है। उसके बाद क्या एंट्री करेंगे, कंपनी देखेगी कि उसका लॉस कितना है, उस लॉस को रिकॉर्ड करेगी। तो सबसे पहला हर ईयर के एंड में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहला ईयर एंड कब आ रहा है, सबसे पहला ईयर एंड आ रहा है, ये देखो सबसे पहला ईयर एंड आ गया, ये ईयर एंड आ गया सबसे पहला, यहाँ से जाके यहाँ। तो ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2012। तो 31 मार्च 2012। अब लॉस है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय है उन्हें कम प्राइस में शेयर ऑफर कर रहे। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस भी लिख सकते हो इसके साथ अगर चाहो तो, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, क्योंकि एम्प्लॉय को हम लोग कंपेंसेट कर रहे हैं। 2 और किस चीज से कंपेंसेट कर रहे हैं, हम लोग उसे ईशॉप दे रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस अकाउंट, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस अकाउंट। तो ये क्या हम लोग रिकॉर्ड करें, ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। अब देखो अभी मैंने बताया था यहाँ पर एंट्री देखो, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस लिख सकते हो चाहो तो, टू ईशॉप बीइंग एक्सपेंस रिकॉर्डेड, हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड करने वाले। तो टोटल एक्सपेंस जितना होगा हम लोग को हर साल अपना एक्सपेंस चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है, क्योंकि हम लोग पर ईयर बेसिस पे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं। तो देखो वर्किंग नोट जो हम लोग बनाएंगे, फर्स्ट ईयर में हम लोग का कितना एक्सपेंस हो रहा है हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये देखो फर्स्ट ईयर हम लोगों ने ऑफर किया था, यहाँ पे ईयर स्टार्ट हो गया, ईयर एंड हो गया। अब हम लोग का ऑफर क्या था, हर एक एम्प्लॉय को 500 करके शेयर का ऑफर था। लेकिन जब हम लोगों को क्या करना है, पीएल जब क्रिएट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों को हर बार एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। और यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर एक एम्प्लॉय जो है वो चला गया है। तो एक एम्प्लॉय चला गया है, तो अभी जो ऑफर है वो कितने एम्प्लॉय के लिए बचा है, बताओ। ड्रॉ देखो अपने कॉपी में और मुझे बताओ कितना एम्प्लॉय बचा है। 19। और उन लोगों को कितना शेयर देना है, क्योंकि पर एम्प्लॉय को 500 देना है। तो 19 एम्प्लॉय को भी कितना देना पड़ेगा, 500 करके, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में ही बता के रखा है ना कि हर एक एम्प्लॉय को हम लोग को क्या देना है, 500। ये देखो क्वेश्चन, ये देखो पर एम्प्लॉय 500 ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। तो एक एक जन को अगर 500 देना है तो 19
19 लोगों को भी तो 500 ही देना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 19 इंटू 500, ठीक है। और इंटू करना है हम लोगों को, क्या करना है, अपना लॉस रिकॉर्ड करना है। अभी मैंने दिखाया था कंपनी का लॉस कितना हो रहा है 45, ठीक है, क्योंकि 75 को 30 में ऑफर किया गया है, तो कंपनी का लॉस है 45, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है कितने, ये पूरा कितना साल का हो जा रहा है, क्योंकि देखो ये तो हो रहा है पूरे 3 साल, क्योंकि ये देखो 3 इयर्स का हो रहा है, क्योंकि ये पूरे 3 इयर्स का है, तो स्टार्टिंग में ये हुआ, अभी तो आगे जाके टाइम बाकी है, तो ये पूरा हो रहा है 3 इयर्स का। तो पर ईयर का कितना होगा, पर ईयर का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, और इस साल का मतलब फर्स्ट ईयर का होगा इंटू 1, माइनस करेंगे क्या, इसके पहले हम लोगों ने कोई भी ईशॉप का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, नहीं किया है, क्योंकि ईशॉप तो स्टार्ट ही हुआ है 1/4/11 से, और हम लोग उसी साल फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पिछले ईयर का कुछ भी नहीं है, यानी -0, प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं है, यानी -0। अब जो फॉर्मूला था एक बार उससे टैली करवाते हैं तो तुम लोग समझोगे। ये देखो फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला क्या है, कैसे एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एस्टिमेटेड टू गेट ऑप्शन। तो फर्स्ट ईयर देखो कितने एम्प्लॉय को एस्टिमेटेड है, क्योंकि पता नहीं आगे जाके और भी छोड़ दे, क्योंकि छोड़ा भी है, तो अभी हम लोग मान रहे हैं हम लोग को नहीं पता है छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, एक जन छोड़ दिया वो पता है। तो देखो एस्टिमेटेड एम्प्लॉइज कितने हो गए, नंबर ऑफ एस्टिमेटेड एम्प्लॉइज टू गेट ऑप्शन 90। उसके बाद क्या है, उसके बाद फॉर्मूला में देखो क्या है, उसके बाद है इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। अब कितने एम्प्लॉय वो पता कर लिया, और उन लोगों को कितना कितना देना है वो भी पता कर लिया, दैट इज 500। अब हम लोग को क्या करना है, इतना शेयर पे लॉस कितना है, एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, लॉस ही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लॉस किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन मतलब शेयर का इंट्रिंसिक या फिर फेयर वैल्यू हम लोगों को लेना है। तो देखो शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू 45, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है जितना मतलब लॉस हो रहा है, तो ये देखो 40 वहां पर था, हम लोगों का एक्सरसाइज प्राइस था 30, मार्केट प्राइस था 75, इनटू फॉर्मूला में फिर से चलते हैं, इनटू क्या है देखो, इनटू है एक्सपायर्ड पीरियड, कितना ईयर एक्सपायर हो गया है, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड। तो ये देखो वेस्टिंग पीरियड कितना है, वेस्टिंग पीरियड है 3, वेस्टिंग पीरियड मतलब कितने साल का कंडीशन है, 3 इयर्स का, जिसमें एक्सपायर हुआ है, ये देखो सिर्फ एक्सपायर हुआ है, ये येलो से मैंने दिखाया है, एक्सपायर हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 साल, तो इंटू 1, और ये टोटल वेस्टिंग पीरियड डिवाइडेड बाय हो गया 3, और माइनस क्या करना है, अगर पहले से कोई भी एक्सपेंस हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, ये इस रिलेटेड ईशॉप रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस अगर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, तो नहीं किया है क्योंकि 1/4/11 से ही स्टार्टिंग है और यही फर्स्ट वाला है, तो इस तरह से वो फॉर्मूला काम में आ रहा है। अब तुम लोग कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, 142500 142500, तो 1,42,500, 1,42,500, ये हम लोग को क्या करना है, ये एक्सपेंस जो हम लोग को रिकॉर्ड करना है, तो ये फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड। और उसके बाद क्यों रिकॉर्ड अभी से कर रहे हैं, क्योंकि पीएल में चार्ज करना है ताकि टैक्स बेनिफिट भी मिले। तो ये देखो इसके बाद वाला एंट्री देखो, ये देखो इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन, तो वही लिखेंगे हम लोग। इसके बाद लिखेंगे 31 मार्च 2012 में, उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे 12 में ही, तो इसका एंट्री हो जाएगा एसपीएल लिख देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस। अमाउंट वही है जो रिकॉर्ड करना है, ये तो जस्ट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 1,42,000 being expenses transfer to SPL, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हम लोगों ने एक्सपेंस को ट्रांसफर कर दिया।
फिर नेक्स्ट ईयर देखो, फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग को रिकॉर्ड करना है अपना एक्सपेंस 31 मार्च 2013 में, लेकिन अब 3 एम्प्लॉय चला गया है, तो सेम एंट्री होगा 31 मार्च 2013 में हम लोग लिखेंगे फिर से वही सेम एंट्री, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP being expense recorded। अब इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तुम लोग कैलकुलेशन वर्किंग नोट में ही करोगे, हम यहाँ पर मिडिल में ही दिखा रहे हैं समझने के लिए। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट देखो यहाँ पर कितने एम्प्लॉय बचे थे, यहाँ पर आके बचे थे 19। अब 19 में से 3 एम्प्लॉय चले गए, 19 में से 3 एम्प्लॉय चले गए हैं, तो कितने बचे 60, और हर एक को 500 करके देना है, और तो लॉस हो जाएगा 45 करके, 16 इंटू 500 इंटू 45
हेलो, आवाज आ रहा है? है दी। अच्छा, स्क्रीन ना शेयर नहीं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है स्टार्ट रिकॉर्डिंग है। আছে। হ্যাঁ अच्छा, तो तुम लोग बताओ, कैलकुलेट किए हो तो कितना आया है बताओ तब तक। ओपन हो रहा है बोर्ड। 2,17,500। नहीं, माइनस नहीं किए होगे तुम लोग, माइनस करो नहीं। प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है तो वो माइनस होगा ना। फर्स्ट ईयर में नहीं था, 1411 से स्टार्ट हुआ था, जैसे नेक्स्ट ईयर में आ गए तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करो। मैम माइनस করেই এসেছে। 97,500 একটা ভুল আছে নিশ্চয়ই। कितना किए हो तुम लोग? 16 इंटू 500। एक बार टैली करो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम बोल रहे हैं तुम लोग देखो, 16 इंटू 500 इंटू 45 इंटू कितना लिखे हो? 2 2 डिवाइडेड बाय 2 2 क्यों डिवाइडेड बाय 3? तो ডিভাইডেড বাই 3 ভেস্টিং পিরিয়ড, ওভারঅল ভেস্টিং পিরিয়ড না, যতটা কভার হয়ে যাচ্ছে মানে মানে 3 এর মধ্যে ফার্স্ট ইয়ার কমপ্লিট হলে বা 3 এর মধ্যে 2 2/3, প্রথমে একটা 1/3, দেন 2/3, দেন 3/3। ওই জন্যই ভুল হচ্ছে। আচ্ছা, স্ক্রিন दीदी শেয়ার। 97500। হ্যাঁ না, हेलो हाँ हाँ मैम आ गया। दीदी
हेलो हेलो, हाँ दीदी। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ मैम। अच्छा 97,500, फिर इसको पीएल में ट्रांसफर करो, फिर उसको पीएल में ट्रांसफर करो, फिर नेक्स्ट ईयर वाला भी कैलकुलेट करो। 97,500 आ गया ना? हाँ दीदी। अब फिर उसको ट्रांसफर करो एसपीएल टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। ओपन बोर्ड तो चालू करो। क्वेश्चनটা প্রথমে লিখিয়েছিলাম ওটা চলে গেছে, ঠিক আছে? फिर नेक्स्ट बताओ कितना आ रहा है, नेक्स्ट कैलकुलेट करके बताओ। 75,000, 75,000 आएगा। इस तरह से देखो 14 एम्प्लॉय हो जाएंगे, 500 इंटू 45 लॉस है इंटू 3/3 माइनस हो जाएगा जो भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड हुआ है उसके पहले। तो फर्स्ट ईयर का 1,42,500 नहीं 1,42,500 प्लस 97,500 और इसे माइनस करोगे तो आंसर आएगा 75,000। ठीक है, आंसर आ जाएगा 75,000। और इसे फिर से उसी तरह से तुम लोग को रिकॉर्ड करना है। एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू ईशॉप 75,000 75,000, फिर एसपीएल टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन 75,000 टू 75,000। तो इतना तक करो, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या करना है हम लोग। यहाँ तक हो गया है तो एक बार मुझे जस्ट बता दो कि हो गया है। हाँ मैम। तो 31 मार्च 2014 तक हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो गया है। अब आफ्टर 1 ईयर यानी 31 मार्च 2015 में एम्प्लॉय लोग हम क्या करेगा, कंपनी से शेयर कंसेशनल रेट में खरीद लेगा। तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा शेयर आ रहा है, ईशॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। और कितना शेयर वेस्टेड हो रहा है 12, क्योंकि 2 लैप्स हो गया था, 14 बचा था लेकिन 2 लैप्स हो गया था। 12 इंटू 500 और 30 रुपीज करके एम्प्लॉय लोग पे करने वाला है बिकॉज ये भी एग्रीमेंट हुआ था। तो कितना हो रहा है देखो, और यहाँ पर तो लिखा हुआ है नहीं बिकॉज वो चला गया नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तुम लोग अगर अपना एंट्री जो है जहाँ पर मैंने लिखा है कॉपी में देखो, यही वाला एंट्री है। वैसे भी स्टेप वाइज समझ में भी आ रहा होगा कि अब इन लोग को पे ही करना है। जो ड्रॉ किया था क्वेश्चन वहां पर देखो, और टोटल पेमेंट कितना मिलेगा कंपनी को देखो। 1,80,000 का पेमेंट मिल गया। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसे ईशॉप जो है इसे ट्रांसफर करेगी कैपिटल में। मतलब ये तो ईशॉप जो हो रहा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, एक पार्ट जो जब हम लोग फर्स्ट एंट्री जो पास कर रहे हैं हर बार, एक हम लोग लिख रहे हैं एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जिसमें कंपेंसेशन जो कर रहे हैं वो तो एक्सपेंस डिनोट कर रहा है, लेकिन जो स्टॉक ऑप्शंस है वो प्रोविजन है। ठीक है, तो हम लोग अब प्रोविजन को बढ़ाते हैं। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो इसको किस तरह से हम लोगों को लिखना चाहिए। अब यहाँ पर कितना जाएगा देखो, हम लोग का फर्स्ट जो लाइबिलिटी था वो कितना था, फर्स्ट प्रोविजन था 1,42,500 का, फिर नेक्स्ट हुआ 97,500 का, आफ्टर दैट हुआ 7,500 का। ये सारा लाइबिलिटी था। और अभी हम लोगों ने क्या किया है,
इन लोगों से क्या और कितना ई शॉप हम लोगों ने जनरेट किया 1,80,000, ये सब ई शॉप था, ये सारा ई शॉप था। एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ई शॉप 1,42,500। फिर देखो क्योंकि एक बार अगर चेक करो तुम लोग, हम यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखा पा रहे एम्प्लॉय कंपनसेशन टू ई शॉप, ये ऐसे दिखा सकते हैं हम, एम्प्लॉय कंपनसेशन टू ई शॉप हो रहा है और आफ्टर दैट हो रहा है पीएल टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। तो एक्चुअली एम्प्लॉय कंपेंसेशन कट जा रहा है, बच रहा क्या है ईशॉप और पीएल बच रहा है, ईशॉप एंड पीएल, हर एक एंट्री में ईशॉप बच रहा है, 2 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बच जा रहा है हर एक पेयर में। देखो तो जो 2 ईशॉप बच रहा है वो देखो और भी बढ़ गया, कितने से बढ़ा 1,80,000 से, 1,80,000 से। तो टोटल कितना हो रहा है चेक करके मुझे टोटल करके बताओ, ये टोटल कितना हो रहा है 1,87,500, 1,42,500 और ये सारा टोटल करके मुझे बताओ कितना हो रहा है। $4,95,000। 4,95,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इस शॉप को इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो देखो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना सारा शेयर्स जो है हम लोग दे रहे हैं 12 इंटू 500 इंटू कैपिटल हमेशा 10 रुपीज से जाएगा, तो कितना हो रहा है बताओ। 12 एम्प्लॉय 500 शेयर्स कितना हो रहा है 12 इंटू 500 इंटू 10, तो हो रहा है 60,000। ठीक है 60,000 हो रहा है। अब यहाँ पर एंट्री कितने से होना चाहिए, यहाँ पर एंट्री होगा 12 इंटू 500, ठीक है इतने सारे शेयर्स इनटू, अब देखो टोटल कितना होगा, मार्केट प्राइस कितने का था 75 का था, यहाँ पर एंट्री जो होगा ये मार्केट प्राइस बेसिस पे होगा। तो 12 इंटू 500 इंटू 75 तो आ जाएगा 4,50,000। तो ये आ गया देखो 4,50,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग बैलेंसिंग फिगर कर देते, बैलेंसिंग फिगर मींस ये मान लो 35 से हो रहा है, क्योंकि ये मैंने 10 ले लिया है, क्वेश्चन में बताया नहीं था। अगर ये 10 होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर करके मैं निकाल सकता हूँ, या फिर 12 इंटू 500 इंटू 65, तो देखो कितना होता है 12 इंटू 500 इंटू 65, तो हो जाएगा 3,90,000। ये हो गया 3,90,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा 3,90,000। इसमें हम लोग लिखेंगे बीइंग शेयर्स अलॉटेड, ये हम लोगों ने शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिया। दीदी 65 টা কত থেকে এলো, ওই যে 75 ভ্যালু মাইনাস 10 রুপিস, ফেস ভ্যালু মাইনাস করলে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামটা বুঝতে পারবো, 75 মাইনাস 10। আচ্ছা अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो वहां पर हम लोग का लिखवाया हुआ था, एक बार तुम लोग कॉपी में देखो, वहां पर मैंने लिखवाया था कि अगर कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी जनरल रिजर्व में। तो देखो वो ट्रांसफर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा जनरल रिजर्व। अब बताओ जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, जितना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ है। तो लास्ट में लैप्स जो है दो एम्प्लॉय है उन्होंने लैप्स कर दिया और एक एक शेयर का वैल्यू था 500। तो देखो यहाँ पर दो चीज समझने का है, यहाँ पर देखो मैंने टोटल करवाया था 4,95,000 से, तो टोटल ईशॉप का क्रेडिट बैलेंस यही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड जब किए तो 4,50,000 आया। इसका रीजन यही है क्योंकि लास्ट में जाके दो एम्प्लॉय लैप्स हो गया। अगर ये 14 से इंटू हो जाता ना, ये वाला पार्ट ध्यान रखो, अगर ये 14 से इंटू होता तो 4,95,000 भी होता। अगर दो लैप्स नहीं होते, तुम लोग कैलकुलेटर लो, इंटू करके देखो 14 इंटू 500 इंटू 75 देखो कितना आ रहा है, नहीं 14 होने से नहीं आ रहा है ना 4,95,000, 14 इंटू
500 into 70 नहीं 5,25,000 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग इस तरह से देख सकते हो, देखो उस तरह से नहीं हो रहा। एक मिनट, ये देखो टोटल क्रेडिट बैलेंस है 4,95,000 का, जिसमें से डेबिट कितना हो गया है 4,50,000 डेबिट हो गया है। तो माइनस करके देखो कितना आ रहा है, माइनस करके आ रहा है 45,000। ये जो 45,000 जो हो रहा है, इतना क्रेडिट था, इतना डेबिट कर दिया हम लोगों ने, तो इतना क्या बच गया, ये क्रेडिट बच गया। ठीक है, अब इसे ट्रांसफर करना हम लोग को जनरल रिजर्व में। अब ये क्रेडिट क्यों बचा, ये क्रेडिट इसलिए बचा है क्योंकि 2 लोगों का जो है वो लैप्स हो गया है। तो 2 लोगों का 500 पर शेयर करके कितना शेयर लैप्स हो गया है, 1000 शेयर्स जो है वो, और किसी को अलॉट नहीं होगा। और इससे कंपनी का कितना, मतलब जनरल रिजर्व क्रिएट होने का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग उसे ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का लॉस कितना हो रहा था, पर शेयर पे 45 का लॉस हो रहा था। अब अगर कोई नहीं लेगा वो शेयर, तो कंपनी को पर शेयर पे 45 का फायदा है। अगर कंपनी का 45 का लॉस था, क्योंकि 75 का शेयर ऑफर किया जा रहा था 30 रुपीज में, ऐसा मैंने लिखा था, तो वहां पर आया था 45। और अगर कंपनी का ये शेयर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो पर शेयर पे 45 का फायदा है, तो जनरल रिजर्व में उतना ही अमाउंट चला जाएगा। ये देखो जनरल रिजर्व में चला जाएगा 45,000। अगर कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता है तो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पर हम जो बताना चाह रहे थे, देखो ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिखाया था कि सारा एंट्री कट जाता है, सिर्फ पीएल और ईशॉप का क्रेडिट बैलेंस बचता है। ये ईशॉप का क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट बैलेंस है। टोटल ईशॉप का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है 4,95,000, और ईशॉप का जो डेबिट बैलेंस हो रहा है वो हो रहा है 4,50,000, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कितना, मतलब स्टॉक ऑप्शंस जो है उसे कितना मतलब डेबिट किया है। देखो 12 लोग लेने वाले हैं, कंफर्म है 500 करके एक एक जन को मिलेगा, यानी 12 into 500। और जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, मार्केट प्राइस है ₹75 करके। ठीक है, और इसे हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। और जिसने लिया नहीं है, जिसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, वो क्या हो गया है, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया है, तो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया है। तो जनरल रिजर्व में, और यहाँ पर देखो ये 4,95,000 है, यहाँ से 4,50,000 माइनस कर दो तो 45,000 वैसे भी दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस बचेगा। अब अगर ये क्रेडिट है ईशॉप का, लेकिन जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज ये ईशॉप में नहीं रह रहा है, ये कहाँ चला जा रहा है, जनरल रिजर्व में चला जा रहा है। और इसे हम लोग लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल, इसे लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल। हेलो, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? हेलो, हाँ मैम। और वहां पर देखो और एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, वो भी समझा देते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एस्टिमेटेड टू गेट ऑप्शंस विल बी, कितने एम्प्लॉय को ऑप्शन मिलेगा वो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो देखो जैसे माइनस करके हो रहा था, 20 में से एक चला गया, वो वही फॉर्मूला लिखा हुआ था। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है टोटल एम्प्लॉइज टू हुम ऑप्शंस आर ग्रांटेड माइनस एस्टिमेटेड एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू लीव, जो चले जाएंगे उन्हें माइनस करना है। उसी को मैंने वहां पर लैंग्वेज में लिखवाया था। और ये है, ये ऑप्शन जो है अलॉटमेंट करने का है, अलॉटमेंट का एंट्री है ये है।
अच्छा देखो, ईशॉप का हम क्वेश्चन तुम लोग को देंगे, जो पीडीएफ है, ठीक है, वो हम तुम लोग को सेंड करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, और ईशॉप नहीं कर रहे, ईशॉप मैंने ये बड़ा सा क्वेश्चन करवाया, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है छोटा छोटा हम सेंड करेंगे, तो तुम लोग उससे होमवर्क में करो। लेकिन मुझे थोड़ा बायबैक का बताना है, बायबैक का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट मुझे लिखवाना है, तो तुम लोग वो थोड़ा नोट करो। ईशॉप बस इतना ही करते हैं। बायबैक का कुछ थ्योरी नहीं, मतलब क्या रूल्स रेगुलेशंस है। रेस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 67, रेस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 67। बायबैक में क्या रेस्ट्रिक्शन है, देखो अंडर सेक्शन 67 में restriction on purchase by company or giving of loans by it for purchase of its shares, for purchase of its shares। इसका मतलब ये होता है, देखो बायबैक का मतलब होता है रीपर्चेस, बायबैक का मतलब होता है शेयर को रीपर्चेस करना। लेकिन सेक्शन 67 में एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, कंपनी खुद का शेयर जो है वो परचेज नहीं कर सकती है, या फिर किसी और को लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती कि हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, तुम मेरा शेयर को रीपर्चेस कर लो। ये लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, फिर भी एक्सेप्शन है, तभी बायबैक होता है, फिर भी एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन हम बताएंगे। नॉर्मली अंडर सेक्शन 67 में क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि कंपनी खुद का शेयर परचेज नहीं कर सकती है, या फिर किसी और को लोन नहीं दे सकती है अपना शेयर परचेज करने के लिए। अब देखो, कंपनी तो दो तरह का होता है, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। और जो ओपीसी है वो प्राइवेट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में देखो रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल्स ये है कि पब्लिक कंपनी के नीचे लिख रहा है, फर्स्ट रूल्स देखो, पब्लिक कंपनी इज, इसके लिए लिख रहा है, पब्लिक कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू परचेज इट्स ओन शेयर। सेम प्राइवेट कंपनी के लिए भी है, अभी मैंने बताया भी था। या फिर प्रोवाइडिंग any assistance, providing any financial assistance is prohibited to anyone for the purchase of its own share, for the purchase of its own share, for the purchase of its own share। वही वाला चीज मैंने लिखा है। बट ये जो है, बट प्राइवेट कंपनी, ये वाला, बट प्राइवेट कंपनी कैन, बट प्राइवेट कंपनी कैन कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देना चाहिए नॉर्मली, जो है रेस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 67 में। लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन एक्सेप्शन है, तभी हो सकता है बायबैक। अब एक्सेप्शन क्या है, when
public company is permitted फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो कौन कौन सा कंपनी ऐसा पब्लिक कंपनी है जो प्रोवाइड कर सकती है? फर्स्ट, बैंकिंग कंपनी, ठीक है, बैंकिंग कंपनी ये कर सकती है बिकॉज इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है लोगों को मतलब लोन वगैरह देना, इसीलिए बैंकिंग कंपनी अगर मतलब पब्लिक कंपनी है फिर भी ये अपना शेयर बायबैक कर सकती है, मतलब थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो लेंडिंग इसमें लिख दो, लेंडिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि मतलब मनी लेंडिंग करना इन लोगों का काम है, तो ये क्या कर सकती है, दूसरे को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है खुद का शेयर रिपर्चेस करने के। इसके अलावा ट्रस्ट, कंपनी गिव्स मनी टू ट्रस्ट, कंपनी ट्रस्ट को पैसा दे सकती है फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, फॉर द purchase of its own share for the benefits of employee, for the benefits of employee। अगर कंपनी के स्कीम में ऐसा है कि कंपनी जो है वो ट्रस्ट को पैसा दे सकती है, जब तुम लोग डिवेंचर करोगे तो उसमें ट्रस्टी वाला कंसेप्ट आएगा। कंपनी क्या कर सकती है, पैसा जो है ट्रस्ट को दे सकती है शेयर रीपरचेस करने के लिए, लेकिन वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, तभी परमिसेबल होगा। इसके अलावा एम्प्लॉइज अदर देन डायरेक्टर, अदर देन डायरेक्टर और की ম্যানেজারিয়াল। দিদি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, আমার এখানে ব্ল্যাক হয়ে গেছে। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, employee taking loan from company, एम्प्लॉय जो है वो कंपनी से लोन ले सकता है। कितना लोन ले सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स ऑफ सैलरी। लोन का अमाउंट होना चाहिए मैक्सिमम 6 मंथ्स ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय क्या कर सकता है, कंपनी से लोन ले सकता है, जो लोन का अमाउंट होना चाहिए मैक्सिमम 6 मंथ्स ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ companies, for the purpose of purchase of companies share from open market। या फिर कंपनी किस तरह से बायबैक करवा सकती है, एम्प्लॉय अदर देन डायरेक्टर और की मैनेजरियल। एम्प्लॉय लोग लोन ले सकता है कंपनी से, अपने कितना मैक्सिमम ले सकता है, अपने 6 मंथ सैलरी के इक्विवेलेंट ले सकता है, लेकिन वो एम्प्लॉय डायरेक्टर और या फिर की मैनेजरियल नहीं होने चाहिए, उनको छोड़ के वो लोग लोन ले सकते हैं कंपनी से, मतलब बायबैक करने के लिए, मतलब रीपरचेस करने के लिए शेयर जो है उसे। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल ऑथराइजेशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑथराइजेशन होना चाहिए बायबैक करने के लिए, मतलब आर्टिकल में लिखा होना चाहिए AON,
और रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। रिजोल्यूशन का रूल्स रिजोल्यूशन का रूल्स मैंने बताया था। अगर बाईबैक जो हो रहा है वो 10% इक्वल टू 10% और लेस देन 10% ऑफ टोटल फ्री रिजर्व, तो बोर्ड रिजोल्यूशन सफिशिएंट। बोर्ड रिजोल्यूशन सफिशिएंट। और more than above, more than this limit, ये जो लिमिट यहाँ पर बताया है उससे अगर ज्यादा हो रहा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन needed to pass in जनरल मीटिंग, GM यानी जनरल मीटिंग। और रिजोल्यूशन पास होता है, रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेंबर जो है वो रिजोल्यूशन पास करवाते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है, जो भी रिजोल्यूशन मेंबर यानी शेयर होल्डर्स होते हैं। और लिमिट देखो, अगर 10% या 10% से कम है टोटल रिजर्व का तो बोर्ड रिजोल्यूशन सफिशिएंट होता है, या फिर उससे ज्यादा है तो स्पेशल रिजोल्यूशन का जरूरत होगा। अच्छा, टाइम गैप लिख लो, टाइम गैप बिटवीन बाईबैक at least 1 year from the closes or proceeding after buyback। सीधा सा बात है, एक बाईबैक होने के 1 साल बाद ही हम लोग नेक्स्ट बाईबैक कर सकते हैं। कंप्लायंस किसके साथ होना चाहिए? देखो, बाईबैक करने के लिए हम लोग को क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी का कंप्लायंस होना चाहिए, और अगर अनलिस्टेड है तो रूल 17 ऑफ कंपनीज शेयर और डिबेंचर। लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक, कितने टाइम के अंदर बाईबैक को कंप्लीट करना है, मतलब अनाउंस करने के कितने टाइम के अंदर बाईबैक जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो विद इन 1 year फ्रॉम रिजोल्यूशन पास, विद इन 1 year from resolution passed। रिजोल्यूशन पास होने के मतलब बाईबैक करना है ऐसा हम लोगों ने अनाउंस कर दिया, रिजोल्यूशन भी पास हो गया है, तो 1 साल के अंदर बाईबैक कर लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लिखो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी।
declaration of solvency. Director has to file declaration of solvency. Directors has to file declaration of solvency. डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि वो सॉल्वेंट है विथ रजिस्ट्रार एंड सेबी. किसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा सॉल्वेंसी के बारे में? विथ रजिस्ट्रार एंड सेबी. ठीक है. अगर अनलिस्टेड है तो सिर्फ रजिस्टर, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो ओनली रजिस्ट्रार. और अगर लिस्टेड है तो सेबी प्लस रजिस्टर, दोनों को ही बताना है. नेक्स्ट लिखो फिजिकल शेयर्स और सिक्योरिटीज. फिजिकल शेयर्स और सिक्योरिटीज. तो एक्चुअली क्या होता है, रीपर्चेस करने के बाद हम लोगों को जो शेयर मिलता है वो कैंसिल करना पड़ता है. तो कितने दिन के अंदर करना है? डिस्ट्रॉय अंडर 7 डेज. 7 डेज के अंदर जो बायबैक किया हुआ शेयर्स है उसे हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर देना है. नेक्स्ट लिखो प्रोविजन फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स. प्रोविजन फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स. फर्दर इशू शेयर कब हम लोग इशू कर सकते हैं? बायबैक करने के बाद फिर हम लोग शेयर इशू कर सकते कि नहीं कर सकते? इसके रिगार्डिंग क्या है प्रोविजन? कंपनी कांट इशू सेम काइंड ऑफ शेयर. और सिक्योरिटीज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ. फॉर नेक्स्ट 6 मंथ. बायबैक करने के 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक कंपनी इस तरह का शेयर नहीं रीइशू कर सकती है जिस तरह का शेयर उसने बायबैक किया है. बट एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है देखो. एक्सेप्शन ये है कि ईशॉप, अगर कंपनी ईशॉप इशू करना चाहती है तो कर सकती है. एक्सेप्शन कंपनी अगर बट ईशॉप या फिर बोनस शेयर या फिर बोनस शेयर इस तरह का शेयर चाहे तो कैन बी इशू. इस तरह का शेयर कंपनी चाहे तो इशू कर सकती है. नेक्स्ट लिखो कंपनी रिक्वायर्ड टू मेक register of buyback of securities. बायबैक का रजिस्टर कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा. रिटर्न ऑफ बायबैक, जैसे टैक्स का रिटर्न भरना पड़ता है वैसे बायबैक के लिए भी रिटर्न ऑफ बायबैक होता है. रिटर्न हम लोग को रिटर्न ऑफ बायबैक हम लोग को दिखाना पड़ेगा. किसे दिखाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार एंड सेबी. यहाँ पर भी रूल्स सेम है. रजिस्ट्रार एंड सेबी यहाँ पर भी रूल्स सेम है. अगर हम लोग लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्टर्ड एंड सेबी दोनों को, लिस्टेड के लिए दोनों रजिस्टर्ड प्लस सेबी, और अनलिस्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड से ही काम चलेगा. लेकिन अगर रिटर्न करने में मतलब रिटर्न भरने में अगर डिफॉल्ट होता है तो उसमें क्या पनिशमेंट है देखो.
डिफॉल्ट अगर होता है तो डिफॉल्ट के लिए 2 जन लायबल हो जाएगा, एक कंपनी और एक डायरेक्टर। तो कंपनी और ऑफिसर इंचार्ज जो रहेगा उस टाइम, मतलब जो बायबैक का काम कर रहा है, ऑफिसर जो होगा वो। तो कंपनी का क्या है, कंपनी का क्या पेनल्टी होगा, मिनिमम 1 लाख तक फाइन लग सकता है और मैक्सिमम 3 लाख। मिनिमम 1 लाख से लेके मैक्सिमम 3 लाख तक का फाइन लगेगा कंपनी को। और जो ऑफिसर रहेगा उनका मिनिमम पेनल्टी बनता है, उनका मिनिमम पेनल्टी बनता है 1 लाख और मैक्सिमम 3 लाख। इसके साथ साथ 3 इयर्स जेल, 3 इयर्स जेल भी हो सकता है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, 3 इयर्स जेल जो है ये मैक्सिमम है। अच्छा, आज यहीं तक लिखवाते हैं, ये बोर्ड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पेज इधर उधर हो जा रहा है। और थोड़ा सा कुछ बाकी है बायबैक के लिए, तो तुम लोग इसे थोड़ा अच्छी तरह से नोट करके लिख लो, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए तुम लोग लाइन बाय लाइन इसे लिखो, जस्ट याद रखने के लिए कि इससे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आएगा उससे करने में हेल्प हो जाएगा, इसीलिए मैंने करवा दिया। और ईशॉप का जो है वो हम क्वेश्चन भेजेंगे, तो तुम लोग ईशॉप जो है वो प्रैक्टिस के लिए वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इसे अच्छी तरह से एक बार लिख लेना। और 2-4 थोड़ा बहुत इसमें बायबैक में और भी 2-4 प्रोविजंस बाकी है, सेक्शन 70 एंड सेक्शन 92 ये सब बाकी है, तो ये 2-4 पॉइंट और भी होगा, ये नेक्स्ट क्लास में फिर से बता देंगे। तो आज यहीं तक करते हैं।